50 से 60 मछली विक्रेताओं ने वापी नगर पालिका पर लगाए गंभीर आरोप। 8-9 वागे बधाए अहींया सही करी सवाરના કે રાતના રાત્રે हाँ रात्रे सरकारी काम કીધેલું તેને કેમ કે આજે તો તમે જો સાઈન નહીં કરે તો કાલે એમ કે તમને પૈસાથી જગ્યા મળે, આજે તો ફોકટ ન મળે। ગરીબ માણસનું કોઈ સાંભળતો હોય? અમે 70 વર્ષથી અમારે ના ડટાઈ અહીંયા बुधवार की दोपहर को वापी नगर पालिका भवन को करीबन 50 से 60 मछली विक्रेताओं ने घेर लिया। इस मौके पर उपस्थित मछुआरों ने मीडिया की उपस्थिति में वापी शहर की मेयर कश्मीरा शाह और सीओ शैलेश पटेल पर कई गंभीर आरोप लगाए। नगर पालिका में उभेला छे। શું બનાવ બન્યો છે આજે? 40 વર્ષથી અમારી જૂની દુકાન હતી, મારી પાસે રસીદ બી છે। અમારી 2 દુકાન છે, તો 2 દુકાનો હતી કે મને 1 દુકાનનું કીધું ને પછી મારું નામ બી નહીં કર્યું ને મારું નામ કાઢ્યું ત્યારે મને કહે તમે એક દુકાનમાં 2 જણા બેસો। અમે એક દુકાનમાં 2 જણ નહીં બેસી શકે। તો જે આજકાલના આવેલા છે 2-3 વર્ષથી એ લોકોને મોટી મોટી દુકાન આખી દુકાન આપી દીધી છે। આ અન્યાય અમારે થયો છે, આ અન્યાય નહીં થવા જોઈએ, અમે નહીં બેસીએ। કેટલા વર્ષથી તમારી દુકાન છે? 40 વર્ષની દુકાન છે જૂની અમારી। ને આશરે કેટલા લોકો તમારા બધા છે સાથે જે તમારા સાથે જૂના? અમારી સાથે બધા જૂના છે, બધા અમારા બધા જૂના કુંવારા ત્યાંથી બધા અમારી સાથે છે। બધાનો મુદ્દો સેમ જ છે તમારો? બધાનો મુદ્દો સેમ જ છે। તો આજે તમે નગરપાલિકામાં કોણને મળી આવ્યા? અમે નગરપાલિકામાં બધા ભાઈને મળ્યા, શૈલેષભાઈને, સર લોકોને મળ્યા, કરિશ્મા મેડમને મળ્યા। તો અહીંયાના જે પ્રમુખ છે તેઓએ તમારા સાથે શું જવાબ આપ્યો તમને? અમારા મનમાં આવે તેવું અમે કરશું એમ કરીને કહે છે। इस मौके पर मछली विक्रेताओं ने कहा कि वापी नगर पालिका के कुछ काउंसलरों ने अपने फायदे के लिए मछली मार्केट की कई दुकानें भाड़े पर दे दी हैं, जहां मछली की बजाय कोल्ड ड्रिंक्स, चाय पानी बिक रहे हैं। कायदे अनुसार ये सारी दुकानें सिर्फ मछली बेचने वालों के लिए आरक्षित है, मगर वापी नगर पालिका के कर्ता धर्ताओं ने इन दुकानों को अन्य व्यापारियों को बेचकर मोटा माल कमा लिया है। नमस्कार, मैं सुरेश भानुशाली, आप देख रहे हैं वेकअप न्यूज़। और आज हम यहाँ पे खड़े हैं वापी की नगर पालिका पे। यहाँ पे मच्छी मार्केट को लेके हुआ है विवाद। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो 70 साल से मच्छी का व्यवसाय कर रहे हैं उनको यहाँ से हटाने की एक्चुअली साजिश की जाए तो भी हम ये झूठ नहीं है। क्यों कि यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई ड्रॉ सिस्टम भी रखा गया था जिसमें जो 2-3 जगह लोग जो बैठते हैं उनको एक दुकान दी जा रही है जिसमें 3-4 लोग एक साथ बैठे, और कुछ जो निजी लोग हैं जिनको 5-5, 6-6 दुकान एक परिवार को दी जा रही है। तो जिसका विरोध ये लोग कर रहे हैं, तो चलो हम जानते हैं कि आखिर मांजरा क्या है। बेन, क्या हुआ था? हूँ रीटाबेन बोलूँ छूँ અને માર્કેટની અંદર જે લડાઈ ચાલે છે અત્યારે, તો બધાને દુકાન મળશે પહેલાં એ રીતે બધાની સહી કરાવી નાખી। રાત્રે આવેલા હતા સૂર્યવંશીભાઈ, રાત્રે લગભગ 8:30-9 વાગે, અને એણે બધાની સહી કરાવી નાખી। બધા માંગેલા બધા જેટલા બહેનો છે તે બધાની સહી કરાવી નાખી અને બધાને કીધું બધાને દુકાન મળશે। હવે અહીંયા જ્યારે આવ્યા ત્યારે બધાને કહે છે જેને દુકાન જોઈતી હોય તે અહીંયા સહી કરો, બરાબર। હવે ત્યાં જેને નથી જોઈતી તે બહાર નીકળો। એમાં બીજાને ફાળવણી કરી દેશું, તમને મળશે નહીં। એટલે એ રીતે અમને ધમકી આપી, એટલે અમે ધમકીના હિસાબે અમે બધાએ સહી કરી છે। અને એક દુકાનની અંદર 2 જણને બેસાડવામાં આવે, દુકાન છે નાની, 2 જણા બેસશે કેવી રીતે? અને એ રીતે અમને ફાળવણી કરે। અરે અમારા માણસો 30-40 વર્ષ 50 વર્ષથી ધંધો કરે છે, તે લોકોના નામ નિશાન નથી, એ લોકોનું નામ લખ્યું નથી। અને અમને બધાને જે હોલસેલવાળાની દુકાન છે તે લોકોને પણ એ સ્ટોલ નાનો ફાળવે છે એ લોકો, અને એની અંદરના જ માણસો મળેલા છે। અને એ લોકો રોજની જ બેઠકમાં મીટિંગમાં આ જ વસ્તુ કરે છે કે ભાઈ આને આપવાની છે દુકાન, આને આપવાની છે, જે છે હકદાર છે તેને દુકાન મળતી નથી ને આજે બી મળી નથી ને એ લોકોના ઢાક ઢમકી બધાએ સહી કરી છે। આજે તમને જે અહીંયા નગરપાલિકામાં જે તમને અંદર બેસાડવામાં આવ્યું હતું ને જે તમારા સાથે ચર્ચા વિચારણા થઈ હતી તેમાં એ લોકોનો તમારા સાથે કેવું વ્યવહાર રહ્યો? ના, બરાબર વ્યવહાર નહીં હતો, અમારી વાત સાંભળી નથી। આ બેને ધક્કો મારીને બહાર કાઢી છે, ધક્કો મારીને બહાર કાઢી છે, મને ધક્કો મારીને બહાર કાઢી છે। હા, પેલે પટાવાળી પાસે કરી કે આને બહાર કાઢો એમ બોલે છે। तो आप देख रहे हैं कि लोगों की वेदना, जो लोग 70 साल से अपना पेट पाल रहे हैं उनको आज यहाँ पे बुला के इनको कुछ डराया धमकाया। इनडायरेक्टली हम जो बोले कि अगर आप साइन नहीं करोगे तो आपको दुकान नहीं मिलेगी, वो कह के इनसे साइन करवाया गया। और यहाँ तक के इन लोगों को यहाँ पे धक्के भी मारे गए। 70 વર્ષથી અમારા પાસે 8 આના ભરતો હતો, અમે પછી 1 રૂપિયા કીધો ને અત્યારે અમારા પાસે રોજના 100 રૂપિયા માંગે તો અમે કેવી રીતે ભરીએ? અમે 500 રૂપિયાની મચ્છી લઈને બેસ, અમારા છોકરા નાના, અમારી વિધવા બાઈ, અમે કેવી રીતે પૈસા ભરીએ? અમે નહીં સહી કરી તો જબરજસ્તી हमारे पास सही ली थी लोग के। अब इन व्यापारियों ने
अन्य लोगों को अपनी दुकानें भाड़े पर दे दी है। इन बातों को लेकर वापी नगर पालिका की अध्यक्षा और नपा सदस्यों ने एक मैराथन मीटिंग भी रखी थी, जिसकी वजह से मीडिया को सभागृह के बाहर करीबन 4 घंटे इंतजार करना पड़ा। इस संदर्भ में मछुआरों और वापी की मेयर ने जो कहा, आप खुद सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टीना लोकोने हाकनी अंदर मोटी मोटी दुकानों आपवानी वातो थई रही है। आटला वर्षोथी आ लोको बेसा छे। मांगेला समाजथी बिलोंग करूं छुं। मांगेला समाज साथे अत्याचार थई रह्यो छे। कार समाज साथे आपणे कोई लागतुं वळगतुं नथी एवुं नथी कहेता। बधा एक ज समाजना लोको छे, बधा माछीमारो ज छे। बधाने समानतानो अधिकार मळवो जोईए। बधाने एक एक दुकान पर्सनली आपवानी वातो थई रही है, एने नहीं आपवी जोईए। એવું લાગે તો આ માર્કેટ તોડીને જે પહેલા ખુલ્લું મેદાન હતું એવું કરી દેવામાં આવે અને લોકોને બેસાડી દેવામાં આવે ને આ માર્કેટના ઉપર જે ધંધો કરી રહ્યા છે ને વાપી નગરપાલિકા, એ વાપી નગરપાલિકા મારું ચાહે તો ગમે તે કરી લે, એ હું સહેવા માટે તૈયાર છું। મેં આ લોકો માટે હવે હું હમણાં કહી દઉં છું કે હું કલેક્ટરથી માંડીને હું બધામાં અરજી કરીશ, બરાબર છે। મારે આમરણ ઉપવાસ કરવો પડશે તો હું કરીશ અને મારે આત્મદાહ કરવો પડશે तो पण मैं मारा समाज माटे करीश। कश्मीर शाह, प्रेसिडेंट वापी नगर पालिका। वो फिशरमैन का कोई इंसिडेंट नहीं था, उनके लिए तो एक्चुअली में खुशखबरी थी। हम लोगों ने एक फिश मार्केट बनाया है, पूरा न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। तो जो रोड पे बैठते हैं उनको हम लोगों ने अच्छे से स्टॉल देकर उनका समाधान किया है और वे लोग अच्छी जगह पर बैठ के अपना बिजनेस करेंगे। मैम, नीचे जब पत्रकार लोग से उन लोगों ने बात किया तब उन लोग ने इस चीज का पूरी तरीके से विरोध किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज के बारे में? उन्होंने ये कहा कि जो साइन हमसे सिग्नेचर करवाया गया है, पहले सिग्नेचर करवा लिया गया और बाद में कहा है कि ये मतलब सबको दुकानें देंगे, ऐसे करके सिग्नेचर करवा लिया। और अभी एक जगह पे उसके बाद में एक परिवार के 5-5 दुकानें दे दी गई है और हम लोगों को पहले तो अभी फिलहाल हम लोगों ने जो स्टॉल्स बाहर, आपको पता है कि रोज जो छूट में मच्छी बेचते हैं डे टू डे बेसिस पे, उन लोगों को दिक्कत ना हो इसीलिए ये हम लोगों ने फिश मार्केट खड़ा किया है। हमारे मंत्री श्री ने बहुत जद्दोजहद की है इसके लिए। और मैडम भ्रष्टाचार कह रहे, बोले कि क्या बोलते कि एक ही परिवार के 5 को दुकान दे दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दुकान नहीं। हम लोगों ने ऑलरेडी उनसे बातचीत करने के बाद हमारे उप प्रमुख और कारोबारी चेयरमैन उनके साथ बैठे थे बाकायदा, और कम से कम उनके साथ 5 से 6 मीटिंग हुई है। उनके प्रतिनिधि आए हैं, उन्होंने जो नाम अपने आप दिए हैं वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैम, नीचे ये बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के जो भी ग्रांट से ये दुकानें जो रेडी हुई है, तो क्या उसका भुगतान या उसके पैसे ये लोग सब ले सकते हो क्या? ये इन लोग को एक बड़ा क्वेश्चन था, तो इसके बारे में बताइए ना। देखिए, जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, जो बाकायदा ऐसा होता है कि 1 लाख के ऊपर अगर किसी चीज की कॉस्ट चली जाए तो उसको हम लोगों को सरकार में उसका पेमेंट और सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ता है ग्रांट में। और मेंटेनेंस के लिए खास करके हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ता है, जो भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट आगे चल के उनको ही सहूलियत के लिए ये चीजें काम लगे। तो जो अभी उन लोग से जो कॉस्ट उन लोग से आप लोग ने जो रिसीव किया है या हुआ नहीं है व्हाटएवर, तो वो चीज मतलब मेंटेनेंस के लिए है या ऑफिशियल कुछ नगरपालिका के नॉर्म्स के हिसाब से उनसे पैसा लिया गया? ये जो डे टू डे बेसिस पे रोजिंदा उनके पास से जो 100 रुपीज पर स्टॉल, और जिनको हम लोगों ने सिंगल स्टॉल में 2 जन का समावेश हुआ है उनको 50 रुपीज पर स्टॉल, ये है हम लोगों का जो रेगुलर बेसिस पे डे टू डे बेसिस पे मेंटेनेंस के लिए जो चाहिए उसके लिए। मैम, लेकिन मोस्टली जो अपोज है नीचे वो एक स्टॉल पे 2 जन को बिठाने का ही मोस्टली हो रहा है, तो ये क्यों? और देखिए, एक तो मैं बात बता दूं कि है ना, कोई स्टॉल जो है वो बड़े हैं, उसी में 2 जन को बिठाया गया है, वो भी उनकी म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद ही वो नाम लिखे गए हैं। लेकिन उनका कहना यही है कि जो 70 साल से हम लोग बैठ रहे हैं, तो हम लोग को एक शॉप में 2 जन को बिठाया गया है, और जो लोग हमसे पीछे आए हैं वो लोगों को इन लोग ने 1-1, 2-2, 3-3 दुकानें दे दी है, या ऐसा भी बोल रहा है कि नेपोटिज्म का हो रहा है कि फैमिली जो इन लोग की है उन लोग ने अंदर दे दिया, ऐसा कुछ इन लोग। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि कोई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो हेरिडिटरी चलते हैं, उसमें नेपोटिज्म की कोई बात नहीं आती है।
अभी मैं समझो कोई बिजनेस कर रही हूँ, उसके बाद मेरा बच्चा करेगा या मेरे 2-3 बच्चे हैं तो वो करेंगे। तो और ये सब बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं। ये लोग मच्छी बेच के ही पेट भरते हैं और उनके परिवार में आने वाले लोग जो पढ़े लिखे ना हो वो भी यही बिजनेस करते हैं। इसमें नेपोटिज्म कहाँ से आ गया? नहीं, ये लोग का कहना है सर। तो वो लोग कहते हैं, लेकिन हमको ये बात समझनी चाहिए और उनसे म्यूचुअली बात करने के बाद ही ये नाम लिखे गए हैं। और उन लोगों का मैडम ये भी कहना है कि 100 रुपए बहुत ज्यादा है, जो 20-25 रुपए जैसे कुछ बनना चाहिए, ऐसा उन लोगों का कहना है कि पर डे के हिसाब से 100 रुपीज बहुत ज्यादा है। ये कैलकुलेशन के हिसाब से किया गया है। जो पर स्क्वायर फीट या जो स्टॉल की साइज होती है उस पे कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद होता है। मैम नीचे अपोज किया गया कि अगर जो इन लोग हमारी जो भी मांगे नहीं मानेंगे तो हम लोग तो बाहर ही मार्केट लगाएंगे। तो मैम इसके सामने कुछ नगर पालिका इन फ्यूचर उसके सामने फिर ठोस कदम उठाएगी कि फिर जो नॉर्म्स बने उसी के उन लोग को फॉलो करने का आदेश देगी? बाहर तो कोई बैठेगा नहीं। अच्छा। जिनको स्टॉल मिल गए हैं उनको अंदर ही बैठना होगा। उनकी सहूलियत के लिए ही बना है और उनके साथ कंसल्ट करने के बाद ही ये फिश मार्केट भी बना है। अब वो लोग यही बता रहे कि ये लोग एलिगेशन ये कर रहे कि हम लोग को जिस हिसाब से कंसल्ट किया गया था, जो हम लोग के बीच में कम्युनिकेशन हुआ था, वैसा कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग से सिग्नेचर कराने के बाद पता चल रहा है कि हम लोग एक शॉप पे 2 जन बैठेंगे। मैम तो उसके बारे में बताइए। तो मैम आपका कहना है मतलब ये है कि अगर जो लोग दुकानों में बैठने से मना कर देते हैं वो बाहर दुकानें नहीं लगा सकते, इनडायरेक्टली उनको तो बैठना दुकान में ही पड़ेगा या तो फिर धंधा बंद हो जाए। सफिशिएंट जगह है वहां पर, उनको लाइट और हाँ सबसे बड़ी बात की लाइट बिल जो है वो नगर पालिका खुद भरेगा, उनको बैर नहीं करना है। मैडम उनके लिए कोल्ड स्टोरेज की भी फैसिलिटी ऊपर बनाई गई है। सारी सहूलियत हम चाहते हैं कि हमारा टाउन जो है थोड़ा सा आइडियल बने तो उसके लिए और क्लीनिनेस रहे तो अच्छा लगेगा। इसी के लिए उनकी सहूलियत के लिए उनके कंसल्टेशन के साथ ही ये चीजें की गई है। नहीं, और जो अभी मैं आप मैडम की और मैं बोलता हूँ, जो एलिगेशन लगा रहे हैं ना, हमारे पास लिस्ट है, कोई एक फैमिली से किसी को दिया नहीं है। मतलब आप बोलते हो एक फैमिली से 5 है, आप लिस्ट देख लो, कहीं पे भी है नहीं और सभी की मंजूरी से हुआ है। जब भी मीटिंग हुई है हर एक टाइम इन लोगों को बुलाया गया है। होलसेल वाले कौन है, रिटेल वाले कौन है, उन लोगों ने ही आइडेंटिफाई किया है। इन लोगों के आइडेंटिफाई होने के बाद ही सब नाम लिखे गए हैं।